السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں ناول جنات کا غلام قسط نمبر 16 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غازی اپنے بھائی کی الہمناک داستان سناتے ہوئے سسکنے لگا تھا اور خود میری بھی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے ہم کتنی دیر تک روتے رہے۔ مجھے آج بھی اپنے سینے میں وہ ہچکیوں بھری آہیں سنائی دیتی ہیں اور میں بے اختیار ہو کر غازی کو یاد کرنے لگتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں سارے دکھ، درد اور پریشانیاں صرف انسانوں میں ہیں۔ عشق و محبت کی مستی اور ہجر و وصل کا لطف و عذاب صرف ہم انسانوں کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ خاندانی اور قبائلی مکروہ اور رسم و رواج صرف انسانوں کو لطیف اور افاقی جذبات سے روکتے ہیں، مگر ہمارے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جسے آگ سے تخلیق کیا گیا اور وہ ہواؤں اور زمین کے گوشے گوشے میں موجود ہے، مگر ہم کو ان کی خوشیوں اور غموں کا ادراک نہیں ہے۔ ہاں، صرف ہمارے ذہنوں میں ان کا خوف مسلط ہے۔ غازی کو ایک قلندرانہ ابالی اور ہمہ وقت بے چین شرارتی ہی پایا تھا، مگر وہ قلبی جذبات کی کیفیات اور غم و اندھا کی حساسیت کو سمجھتا تھا۔ مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے مزید کچھ دریافت کروں۔ غازی، میں بابا جی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے خاصی دیر بعد اسے مخاطب کیا۔ بابا جی اس وقت بہت ناراض ہیں بھیا، وہ آرزادہ سا ہو کر بولا۔ میرا دل چاہتا ہے تم یہیں میرے پاس اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک سحری کا تارا ڈوب نہیں جاتا۔ وہ ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ خلاؤں میں گھورتا رہا، ایسے لگا جیسے ستارے گن رہا ہے اور کسی خاص تارے کی تلاش میں ہے۔ کیوں؟ وہ مجھ پر بھی ناراض ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، شاہ صاحب کی تو شامت آئی ہوئی تھی کچھ دیر پہلے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کو معلوم تھا کہ آج بابا جی حاضری نہیں دے سکیں گے، لہٰذا آپ سے جو انہوں نے کام لیا ہے وہ اسی غلطی میں لے گئے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو شاید وہ آپ کو اس کام پر پھر بھی بھیجتے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم میں سے کوئی آپ پر مامور کر دیا جاتا اور آپ کو قبرستان میں ایسے حالات پیش نہ آتے۔ اس کی طبیعت اب بحال ہو رہی تھی۔ اگر آپ کہو تو میں بابا جی سے آپ کے لیے اجازت کا پروانہ لا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اس کے لبوں پر شگفتگی کے پھول نئے سرے سے کھل رہے تھے۔ جلیبیاں تو ختم، اب کچھ اور ہونا چاہیے۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ یار، اب تو یہی کچھ بچا ہے۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے اور وہ اس نے روپے ایسے اچک لی جیسے چیل مرغی کا بچہ۔ لو بھیا، میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور میں باغیچے میں تنہا رہ گیا۔ مان مجھے صبور کا خیال آ گیا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ البتہ احساس ہوا کہ پودوں کے سائے بہت زیادہ گھنے اور ان پر لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اندر ہزاروں وجود داخل ہو چکے ہیں اور یہ سارے سائے ایک دوسرے میں مدخم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے فضا میں گھٹن کا بھی احساس ہوا۔ فضا کی خنکی اور رومانیت یکسر موقوف ہو رہی تھی۔ مجھے گھبراہٹ اور خوف محسوس ہونے لگا اور میں جلدی سے مہمان خانے کی طرف بھاگنے لگا، مگر جو ہی میں نے قدم اٹھائے مجھے احساس ہوا جیسے سارے پودے میرا گھیراؤ کرنے لگے ہیں اور ان کا گھیرا لمحوں میں تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں اب دیر نہیں لگی، جنہیں میں پودوں کے سائے سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ وجود ماورائی تھے جو سیاہ لبادوں میں اپنے وجود پھیلا کر آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ سائے میرے چاروں طرف پھیل گئے اور میں ان کے حصار میں قید ہو کر رہ گیا۔ ابھی تک مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر یہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے تو مجھے پیس کر رکھ دیں گے۔ میں نے چیخ کر ان سے پوچھا، کون ہو تم؟ مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا اور سائے میرے بالکل قریب آ گئے اور پھر اس سے قبل کہ میں کچھ کرتا، محض ایک کربناک چیخ تھی جو میرے اندر سے بلند ہوئی تھی اور میں اتنے زور سے چلایا تھا کہ میری آواز میلوں تک سنی گئی ہوگی۔ اسی لمحے چاروں طرف پھیلے سائے ایک دوسرے میں آ کر ضم ہو گئے تھے اور میں ان کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا وجود بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا ہے۔ میرا رواں رواں دکھنے لگا اور یوں لگا جیسے سر سے پاؤں تک میرے وجود سے شعلے بلند ہونے لگے ہیں۔ دماغ میں چونٹیاں سے رینگنے لگی تھیں اور دل کے در و دیوار میں کوئی بڑی سی چھپکلی رینگنے لگی تھی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب مجھے بابا جی کی شفقت بھرے انداز میں پکارنے کی آواز آئی۔ ان کی آواز میرے لیے روشنی کی لہر بن رہی تھی اور میرا ذہن تاریکیوں کی پستیوں سے اجالوں کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ یہ روشنی اور اجالے مجھے اوپر ہی اوپر اس مقام تک لے گئے تھے جہاں مجھے 3 چہرے نظر آنے لگے تھے۔ یہ غازی، شاہ صاحب اور بابا جی تھے۔ بابا جی کے چہرے پر مسرت افروز نور پھیلا ہوا تھا۔ احرام میں ان کا پورا وجود گم تھا۔ دودھیا رنگت، سفید گھیسو ان کی شانوں پر لہرا رہے تھے۔ آج ان کا دیدار پہلے دیدار سے مختلف تھا۔
अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, मेरा हाथ थाम लो मेरे बेटे, तुम एक बहादुर इंसान हो, आगे बढ़ो। जो ही उन्होंने मुझे पुकारा, मुझे एहसास हुआ कि कोई ऐसी कुव्वत भी वहां मौजूद है जो मुझे अब उजालों से पीछे की तरफ खींचकर तारीकियों में गुम करना चाहती है। वो बार बार मेरा दामन पकड़ रही थी और मुझे पीछे को धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसकी परवाह नहीं करो, अपनी परवाज़ बुलंद रखो। बाबा जी ने मुझे हौसला दिया। मुझे हौसला हुआ और मैं जोरों शोर से उजालों में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे साथ मामला अब उस गाड़ी की तरह पेश आ रहा था जिसके पिछले टायर किसी नरम जमीन में धंस जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी का जोर लगाता है तो टायर बाहर निकलने की बजाय मजीद धंसते चले जाते हैं। मैंने बाबा जी को अपनी कैफियत से आगाह करना चाहा और लब खोले तो एक लफ्ज भी जुबान से ना निकल सका। लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान को तालू के साथ चिपका दिया है और गले में कांटे चिबो रहा है। इस शिद्दत जोर और लाचारगी से मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए और मैं बहुत जोर आजमाई और कोशिश के बाद महज सिर्फ इतना कहने में कामयाब हो गया, बाबा जी सरकार, मैं क्या करूं? कोशिश के बावजूद ये अंधेरे मुझे नहीं छोड़ रहे। बेटे, यही वो मराहिल होते हैं जब इंसान को उसके इम्तिहान में सरखुरी हासिल होती है। बाबा जी ने अपना हाथ पीछे हटा लिया। सारे लोग अंधेरों से उजालों में आना चाहते हैं, लेकिन कुव्वत मौकूफ होने से वो ऐसा नहीं कर पाते। और जानते हो तुम, ये कुव्वत बातनी, रूहानी वजदान और सरशारी क्या शय है? ये रूही की ताकत होती है जो इंसान को इल्म और आगाही से आरास्ता करती है। जो लोग अपनी रूह से हम कलामी और उसकी जबलत को पा लेते हैं, इनके लिए अंधेरों यानी गुमराही से निकल आना मुश्किल नहीं होता। यही मामला तुम्हारे साथ पेश आ रहा है। तुम अंधेरों और उजालों में मौलिक हो। तुम्हें अभी इनमें तमीज करना नहीं आती। जिन्हें तुम सच्चाई और हकीकत समझते हो, हकीकतन वो भी गुमराही का एक लिबादा है। तुम्हारा दिल अभी तक गंदा है। दूसरों के लिए अपने दिल को कुशादा कर लो और सच्चाई की रोशनी को पकड़ लो। तुम इन अंधेरों से बाहर आ जाओगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम में ये खूबियाँ हैं। तुम उजालों के सफर के मुसाफिर हो। मैंने तुम्हें पुकारा और तुम लौट आए, लेकिन अब तुम रुक गए हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। देखो, मैं ही नहीं, अपने शाह साहब और तुम्हारा गाजी भी अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा रहे हैं। आओ और मेरे बच्चे, हमारा हाथ थाम लो और उजालों की दुनिया में आ जाओ। ये कहकर इन तीनों ने अपने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैं जोश के आलम में अंधेरों के हाथ अपने दामन से हटाकर उनके हाथ थाम लेने में कामयाब हो गया। तीनों ने मुझे निहायत आहिस्तगी से ऊपर उठाया और मुझे एक बराक बिस्तर पर लिटा दिया जिसके चारों तरफ खुशबुओं का राज था। फिजा में तरावत और नगमगी का एहसास था। निहायत पुरसुकून रोशनी थी जो कल्बो नजर को लुत्फ व करम के एहसास से दोचार कर रही थी। मैंने ऐसा बिस्तर और ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था जो उजालों की दुनिया में वारिद होकर पाया। बाबा जी, शाह साहब और गाजी मेरे बिस्तर के गिर्द खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक आंसू अटके हुए थे। मैंने बोलने की कोशिश की और पुरजोश अंदाज में बोला, बाबा जी सरकार, मुझे माफ कर दें। मैं वाकई शाह साहब के बारे में बदगुमान था, मगर अब वादा करता हूँ कि ये मेरे भाई हैं और मैं इनकी ताबेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी तहसीन अमेज अंदाज में पीर रियाज शाह की तरफ देखने लगे तो उनके लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। ऐसी मुस्कुराहट जो अक्सर फातिहा बनकर और एहसास तफाकर के भरे लोगों के चेहरों पर खिलती है, मगर लोग उस मुस्कुराहट का मतलब नहीं जान पाते कि उसके खिलने में कितने कहरों ने अपना वजूद गारत किया होगा। अब तुम आराम करो। बाबा जी ने अपना नरम रेशमी हाथ मेरे माथे पर रखा तो उनके मस का एहसास मेरे पूरे रगो जान में सुकून की लहरें पैदा कर गया। जब उठोगे तो तुम्हें बहुत से काम करने हैं। बाबा जी के मस का एहसास इतना भरपूर था कि नींद मेरी आंखों में उतर गई और मैं सो गया। बहुत ही गहरी पुरसुकून नींद, ऐसी नींद कि जब मैं बेदार हुआ तो लगा जैसे उस दुनिया की आलाइशों और ज़हनी जिस्मानी थकावटों का कभी शिकार ही नहीं हुआ था। मैं बड़ी राहत मिली थी और मुझे अपने वजूद में नए सिरे से सरशारी और गर्मजोशी महसूस होने लगी थी। गोया उस नींद ने मुझे रिचार्ज कर दिया था। शायद मैं पहरों सोया हूँगा। जब आंख खुली तो मैं मेहमान खाने में शाह साहब के बिस्तर पर सोया पड़ा था। मैं आंखें मलता हुआ अंगड़ाई लेकर उठ पड़ा। कमरे में हल्का सा उजाला था। सुबह हो रही थी और नरम रूह रोशनी खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। कमरे की फिजा अभी तक कमा की हद तक मुअत्तर थी, लेकिन जो माहौल और आसूदगी मुझे नींद से पहले मुयस्सर थी वो अब कमरे में अनका थी। मैं सोचो विचार में मुब्तला हो गया कि मैं तो एक बराक बिस्तर पर सोया हुआ था और इस कमरे की फिजा ऐसी तो ना थी। मुझे ख्याल आया कि गालिबन मैंने नींद की हालत में ये लुत्फ़ व करम पाया है। मेरा वजूद गवाही दे रहा था कि जो आसूदगी ख्वाब में मिली है वो यकीनन अपनी हकीकत रखती होगी। मैं ज़हनी तौर पर उलझने भी लगा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि बागीचे में मेरे साथ क्या हुआ था और फिर लम्हा लम्हा सरकती हुई यादें मुझे बाबा जी की बातें याद दिलाने लगी। मैं बिस्तर से उठा ही था कि दरवाजे पर खटका हुआ और शाह साहब
तौलिए से सर खुशक करते हुए अंदर दाखिल हुए। वो गुस्ल करके आए थे। मुझे देखते ही बोले, मजे लूट लिए हैं, बड़े किस्मत वाले हो तुम। मैं पुरजोश मुस्कुराहट लेते हुए बोला, ये सब आपकी मेहरबानी है शाह साहब, वरना मैं किस काम का। अरे तुम बड़े काम के हो। उनकी बात सुनकर मुझे बाबा जी की बात याद आ गई। शाह साहब मैं तो बाहर बागीचे में था और छोड़ो उन बातों को, शुक्र करो कि तुम्हारी चीख सुनकर बाबा जी ने तुम्हें इस आफरीत से बचा लिया, वरना तुम्हारा हाल भी वही होता जो जुलेखा का हुआ था। वो कौन था? मैं परेशान होकर उन करबनाक लम्हों को याद करने लगा। वही हरामखोर कालीदास था जो तुम्हें कब्रिस्तान में मिला था। शाह साहब कुर्सी पर बैठ गए और शीशी से सरसों का तेल निकालकर गीले सर पर लगाने लगे। असल में इसमें कसूर मेरा है, वो बोले। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि इस खतरनाक अमलियाती काम पर तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। बस दिमाग पर ताकत का नशा था, इसलिए भेज दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। बाबा जी खिलाफत तवक्का ऐन उस वक्त आ गए थे जब तुम कब्रिस्तान की उस कब्र में गिरे थे और वो बदकार तुमको काबू करने ही लगा था, लेकिन बाबा जी की हवेली में आमद ने उसको ये जुर्रत ना होने दी। तुम तो भागकर आ गए और इधर बाबा जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने खींचातानी शुरू कर दी। फिर जब तुम बागीचे में थे तो उस बदकार ने तुम पर दोबारा हमला कर दिया। उसने ये हमला हवेली में मौजूद काफिरों की बग्गी के साथ मिलकर किया था। अकेला वो हवेली में नहीं आ सकता था, वो मेरे दुश्मनों के साथ मिल गया था। वो कौन था? मैंने दोबारा इस्तफसार किया। वो हमारा दुश्मन था, अब तुम्हारा भी बन गया है। शाह साहब ने कहा, ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसका नाम कालीदास है, हिंदू है और हिंदू आमलों के काम करता है। जिस तरह हमारे यहाँ मेरे साथ बाबा जी प्यार करते हैं, इसी तरह कालीदास भी जिन है मगर काफरों में से है। 1.5 साल पहले मैं मियानी साहब लाहौर में 40 रोजा वजीफा कर रहा था कि इससे टाकरा हो गया। बाबा जी अभी मेरे पास नहीं आए थे। मैं हकीकत में बाबा जी का कुर्ब हासिल करने के लिए ही ये चिल्ला कर रहा था। बाबा जी मेरे बड़े भाई के पास आते थे। मेरी वालिदा की वफात के बाद बाबा जी सरकार भाई सईद इकबाल हुसैन शाह के पास हाजिरी देते थे। मेरी वालिदा इबादत गुजार खातून थी, रातों को उठकर इबादत करती थी। बाबा जी की उनके साथ अकीदत थी। ये अलग दास्तान है कि बाबा जी मेरी वालिदा के पास क्यों आते थे और ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बहरहाल जिन दिनों चिल्ला काट रहा था, मेरी रहनुमाई और सरपरस्ती करने वाला कोई ना था। मुझे मालूम भी नहीं था कि चिल्ला काटने से पहले मुर्शिद की इजाजत चाहिए होती है। चनाचे बाबा जी बड़े भाई के पास आते थे और मुझे किसी हद तक उनकी आमद और रवानगी के तरीक़ाकार से आगाही होने लगी थी, बल्कि मैंने कुछ कलिमात भी सीख लिए थे। लिहाजा मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि बाबा जी तो हमारी वालिदा के इल्म की वरासत है, इसे हम दोनों भाइयों में तकसीम होना चाहिए। बड़े भाई से तो मैं ये ना कह सका, लेकिन ये ख्वाहिश मुझे बेकरार करने लगी और मैं बाबा जी की कुर्बत की ख्वाहिश से तड़पने लगा। एक रोज मैंने मौका पाकर बाबा जी से ये कह भी दिया कि आप कभी मुझे भी ज़ियारत और खिदमत का मौका दें। इस पर वो कहने लगे कि हमारी ज़ियारत और खिदमत का बोझ उठाने के काबिल हो जाओ, इसके लिए मुजाहिदे करने पड़ते हैं, अपना नफ्स मुती करना पड़ता है, तुम अभी बच्चे हो। मैंने मुजाहिदे से मुराद यही ली कि वो मुझे कह रहे हैं कि चिल्ले वगैरह करो। एक रोज मैंने अखबार में पढ़ा कि मियानी साहब के कब्रिस्तान में आमलीन चिल्ले काटते हैं। खैर मैंने महल्ले के मौलवी साहब से चिल्ले के बारे में कुछ मालूमात ली और कुछ बातें किताबों से पढ़ने के बाद समझने लगा कि अब इस काबिल हो गया हूँ कि कब्रिस्तान में जाकर चिल्ला काट सकूं। असल में मेरे दिमाग में जो बात आ जाती है और जो ख्वाहिश तंग करती है, मैं इसे पूरा करता हूँ। बड़े भाई की आदत मुख्तलिफ है। मैंने मियानी साहब में 20 रुपए देखकर गोरकन से 50 साल पुरानी कब्र पर बैठकर चिल्ला शुरू कर दिया। मुझे चिल्ला काटते हुए सिर्फ 3 रोज गुजरे थे कि ये बदकार कालीदास मेरे सामने आ गया। मैं समझा कि बाबा जी आ गए हैं। मुझे क्या तमीज थी, मैं तो इस वक्त ये भी नहीं जानता था कि जिन्नात अशकाल बदलने पर कुदरत रखते हैं। मैंने इसे बाबा जी कहकर मुखातिब किया था। उसने मुझे बाबा जी बनकर ही हौसला दिया और कहा कि अब मजीद चिल्ला करने की जरूरत नहीं है। मैंने दिल खोलकर बड़े भाई के खिलाफ बातें की और उससे उसकी हाजिरी कलमात हासिल कर लिए। मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता था कि मैं दुनिया का वाहिद आमिल हूँ जिसने 40 रोज की बजाय सिर्फ 3 रोज में एक जिन को काबू कर लिया है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे पहले ही कदम पर गुमराह कर दिया गया और मैं आमिल की बजाय मामूल और मौकिल बनकर रह गया। मैंने अब घर जाना छोड़ दिया था। कालीदास ने मुझे लाहौर की एक पुरानी बस्ती का एक मकान लेकर दिया। इस बस्ती में हिंदू रहते थे। मैंने इस बारे में कुछ पूछताछ नहीं की, बल्कि मेरे अंदर घुमंड पैदा होने लगा। कालीदास रोजाना हाजिरी देता था। उसने मुझ पर खुद को आश्कार नहीं किया था। वो खुद को मुसलमान जिन ही जाहिर करता था। असल में वो बाबा जी सरकार को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। कालीदास आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा था। मैंने उस बस्ती में चंद अरसे ज़्यादा मरीजों का इलाज किया तो लोग मेरे पास आने लगे, पैसा भी आने लगा और मुरीद भी। एक रोज कालीदास ने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ काले अमल वगैरह सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं इस वक्त हैरान नहीं हुआ कि एक मुसलमान जिन मुझे शैतानी इल्म सिखाने की बात क्यों कर रहा है।
اصل میں جب خواہشات کے تکمیل کا شمار ہو تو انسان کسی ناجائز بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ مجھے ہندوؤں کے مندروں، اشنان گھاٹ اور مرگھٹ وغیرہ پر لے جانے لگا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے ایسا عمل سکھایا جس کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ عمل سکھانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم اپنے گھر میں اس وقت یہ عمل کرنا جو تمہارا بھائی بابا جی یعنی میری حاضری کریں۔ اس طرح میں ان کی قید سے نکل کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نادان یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ جب وہ خود میرے پاس آتا جاتا ہے تو پھر کس قید کی بات کر رہا ہے۔ خیر میں وہ سفری عمل سیکھنے کے بعد گھر گیا۔ بھائی عموماً جمعرات کو بابا جی کی حاضری لگاتے تھے، لیکن اس روز بابا جی چند مریضوں کے علاج کے لیے حاضری دے رہے تھے۔ بھائی جب 80 سے زیادہ مریضوں کا علاج کر کے فارغ ہوئے اور بابا جی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے تو میں نے کالی داس کا سکھایا ہوا عمل کرنا شروع کر دیا۔